Hello students, today we are going to start Pol Science class 9th chapter Constitutional Design. In this chapter, what we are going to study how the constitution of a democratic country was framed. Before starting the chapter, let's discuss a very short definition of a constitution. Now, what is a constitution? Constitution is a rule book according to which a government governs the country. It was just like same as the rules which was made in a particular game, so that game was being played very smoothly. Now let's start the chapter with the story of South Africa. Let's move on to the next slide and let's discuss. So this was the story of Nelson Mandela, who was considered as second Gandhiji. Now why second Gandhiji? As he followed the policies of Mahatma Gandhi, that is the path of Satyagraha. Now, this was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. At that time, in South Africa, at that time was ruled by the white minority people. It was same just like the white people, or we can say the Britishers who ruled our country. In the same way, these people ruled South Africa. And in South Africa, a policy was followed, and the policy was apartheid. In the next slide we are going to discuss, but let's discuss is first. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. Including Nelson Mandela, 7 other peoples who raised their voice against the apartheid, which was a racial discrimination in which white minority ruled over the black majority people. And for daring that thing, they were sent to jail. It was written over here, tried for treason. Treason means गद्दारी करना, उसके लिए उन लोगों को देश निकाला या उसके लिए उन लोगों को punishment दिया गया था. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. So, for daring which he had done, for that he was sent to South Africa's dreaded island, or we can say dreaded prison, which was made at Robben Island. Now let us discuss what he has done. So let's move on to the next slide. So apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. In this, the white minority people are showing their authority or are ruling over the black majority people. The black majority people were treated like inferiors over there. So, the system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The people, like in South Africa, not only the black people were treated badly over there, but there are some people also who were treated like the blacks in South Africa when the minority white people are ruling in South Africa. They made up about 3/4. Make this thing sure, this is very important. 3/4 of the total population who were living in South Africa, they were of the blacks. इसके अलावा कुछ 2 groups और थे. That is the mixed races group called the colors and people who migrated from India. Except the black people, there were 2 categories also. That is, first one is the colored people, and the third category is the people who migrated to South Africa. And the people who migrated from India to South Africa, they were also treated like the people of South Africa, the black people of the South Africa. Now let's move on to the next one. Next slide. The white rulers. Now it was a picture, it was given over here, and it was a warning board. Natives, Indians and coloreds, if you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight, savage dogs devour the corpse. Now what was this written? It was a notice. एक नोटिस लिखा हुआ था जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि अगर इन एरियाज में आप ब्लैक पीपल या कलरेड्स आप जाते हो तो यू आर काउंटेड एज अ मिसिंग. यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डॉग्स हैं जो आपको खा सकते हैं, जो आपको मार सकते हैं.
तो ये आपको वार्न किया जाता है कि आप इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि इन एरियाज में आप ब्लैक पीपल को एंटर नहीं होना है. राइट नाउ the white rulers treated all whites as inferiors. It was same the concept which was followed in our country. The white people, they shows their superiority. They considered themselves as the civilized people, and they considered us, or in South Africa, the black people who were living over there, they considered them as the inferior people, or we can say uncivilized people. They could walk in white areas. अगर इन ब्लैक पीपल को उन वाइट एरियाज में काम करना है ना, व्हाट आर द वाइट एरियाज? द साउथ अफ्रीका वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द ब्लैक एंड द वाइट एरिया. जैसे हमारे इंडिया में था वाइट एरिया एंड द नेटिव टाउन, जिसमें सबसे बेस्ट एरिया जिसको वाइट एरिया बोला गया था, वो सबसे अच्छा एरिया था जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज थी, वेल मेंटेन रोड सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर. इन द सेम वे साउथ अफ्रीका में भी यही किया गया. वहां पर भी डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, द ब्लैक एंड द व्हाइट एरिया. राइट, एंड इफ द ब्लैक पीपल वांट टू वर्क इन द व्हाइट एरिया, दे हैव टू टेक द परमिशन. उनको परमिशन लेनी पड़ेगी. ईच एंड एवरीथिंग वाज सेपरेट फ्रॉम देम, लाइक टैक्सीज, लाइक स्कूल्स, लाइक लाइब्रेरीज, इवन द चर्च टू, द प्लेस वेयर द पीपल ऑफर प्रेयर्स. ये वो जगह जो सबके लिए कॉमन थी, लेकिन अब इसको भी सेपरेट कर दिया गया. चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, चाहे वो थिएटर्स हो, चाहे वो बीचेस हो, ईच एंड एवरीथिंग. सो जो सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म यूज होता है जिसे बोला जाता है सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, वन इन द सेम थिंग. They could not even visit the churches where the whites worshipped. Blacks could not form association. Even at that time, the blacks were not allowed to protest against the bad things which were done on them by the white minority people. सिर्फ उनको हर चीज को सहन करना है. That was the system which was followed in South Africa at that time. Let's discuss it further in the next slide. Now, policy of apartheid opposed by peoples of South Africa. कोई भी चीज की एक लिमिट होती है. हम एक बार किसी चीज को सहन करेंगे, दूसरी बार करेंगे. एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहां पर हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हो जाते. और अब यही हुआ. जो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे. जो चीजें उन लोगों के साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ किया जा रहा था, उनको उनके ही देश के अंदर सरवाइव करने नहीं दिया जा रहा था. दैट्स व्हाई फॉर दैट दे प्रोटेस्टेड. एंड ये उस चीज को करने के लिए दे मार्च्ड, they went on strike. The African National Congress, it was an organization which was made by the people. उन लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो कि इन वाइट माइनॉरिटी के रूल से परेशान थे. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसके अंदर इन्वॉल्व थे. दैट्स वाई इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया है. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से और वी कैन से ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर अपनी अपनी आइडियोलॉजीज इसके अंदर डाली और एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. इस कांग्रेस का मतलब हमेशा इसी से रिलेट करिएगा कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पॉलिसी के ऊपर वर्कआउट करते हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टी जो किसी पॉलिसी पर वर्कआउट करती है. कांग्रेस डजंट रेफर जो हमारे इंडिया में है. कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल. नाउ दिस इंक्लूड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी. इवन देयर आर सम ऑफ द व्हाइट पीपल जो हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, जो सोचते थे, जिनको ये पता था कि हम इंडियंस के साथ या हमारे यहाँ पर या साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक्स हैं, जो इंडियंस हैं, जो कलरेड्स पीपल हैं, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है. सो दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ANC, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. Several countries, even not only these people or not only the people of the South Africa, either they were the minority or they were the majority people. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर अपार्थीड के अगेंस्ट क्वेश्चनिंग की जा रही थी. यह बोला जा रहा था कि अपार्थीड जो साउथ अफ्रीका में फॉलो किया जा रहा है वो बहुत ही गलत सिस्टम है. यहाँ पर लोगों के साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा है और अगर ऐसा रहा तो लोगों की कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी. ऐसा
कहा जा रहा था, बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग। फिर भी जो व्हाइट गवर्नमेंट वहां पर रूल कर रही थी, दे आर नॉट एट ऑल डूइंग एनी गुड फॉर देम, उन लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रही थी, जबकि उन्हें पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जो कॉन्सेप्ट वो फॉलो कर रहे थे, स्टिल नो चेंज, दे आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर परफॉर्मिंग द सेम थिंग, टॉर्चरिंग, killing thousands of blacks and colored people. Let's further discuss it. So let's move on to the next one. So features of the South African Constitution which makes it the finest constitution the world had ever had. Now वापस से नेल्सन मंडेला की बात हम करते हैं। ये तो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया था कि साउथ अफ्रीका में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता था, क्यों नेल्सन मंडेला को 28 साल अफ्रीका के सबसे डेडलीस्ट आइलैंड पे या डेडलीस्ट प्रिजन में जो रॉबन आइलैंड में था वहां पर गुजारने पड़े। इवन जब वो वहां से बाहर निकले उन्होंने उसी चीज को कंटिन्यू करा। उनका एक ही मोटो था, उनका एक ही थीम था, या उन्होंने एक डेडिकेशन कर रखा था कि मैं क्या चाहता हूं, मैं एक ऐसा साउथ अफ्रीका का फॉर्मेशन करना चाहता हूं जहां पर सब लोग एक साथ मिलकर रहें। सो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में से काउंट किया जाता है और ये दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक रोल मॉडल बन के रहा है, इवन फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू। सो South African Constitution is based on equality of all races and men and women on democratic values, social justice and human rights. So, South Africa का जब Constitution की framing की बात चालू हुई तो फाइनली ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर सिर्फ जो रूल्स बनाए जाएंगे वो सिर्फ ब्लैक लोगों के लिए ही नहीं, यहाँ पर हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जो सारे लोगों के लिए, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो कलरेड्स हो, चाहे वो इंडियंस हो, कोई भी हो, सब लोग हार्मनी से एक साथ मिलकर रहेंगे। हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ, हमारे साथ जो ब्लैक पीपल ने करा वो कोई बात नहीं, अब हमको ऐसा उनके साथ नहीं करना है। यही बेस पर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें इक्वालिटी को सबसे ऊपर रखा गया। ये जो रूल्स बनेंगे वो सबके लिए बनाए जाएंगे। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिस पार्टी ने हमारे साथ गलत करा और जो पार्टी उनके अगेंस्ट में खड़े होकर लड़ाई लड़ रही थी, उन सब ने एक साथ मिलकर ये प्लानिंग करी कि अब हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें हम सब लोग एक साथ मिलकर रहें। This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. The South African Constitution inspires democrats all over the world. Now the question came, who are the democrats? Democrats are those people who believe in the equal political rights, including women also. Not only the men. Men and women were given the equal political rights. And the Democrats who were living throughout the world, they were all in favor of the constitution which was formed by the South African government. A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one, वो state या वो देश जहां पर अनडेमोक्रेसी की बातें की जा रही थी, आज उसका ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फाइनेस्ट बन के आया। लेकिन जो चीजें उन्होंने देखी, जो स्ट्रगल उन्होंने करा, उस स्ट्रगल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, सो इट वाज एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट कि साउथ अफ्रीका के साथ जो हुआ उसकी वजह से कितना बड़ा और कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ एंड द पीपल गॉट इक्वल राइट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट। लेट्स फर्दर डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। End of apartheid. As protests and struggles against apartheid had increased, so government को लगा कि अब protest बढ़ता जा रहा है, तो we need to do something, क्योंकि अब black people white minority के ऊपर हावी पड़ रहे थे। So उन्होंने बोला कि अब हम ज्यादा लंबे समय तक इन black people को अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो white government ने अपनी policies को change करा,
ठीक है, जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि हर चीज सेपरेट कर दी गई थी, चाहे वो चर्च क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल्स क्यों ना हो, चाहे वो टैक्सीज क्यों ना हो, हर चीज जो सेपरेट की गई थी, अब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमने बहुत ज्यादा जो उनके साथ किया डिस्क्रिमिनेशन, अब वो आगे तक नहीं चल पाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर उस दौरान बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा मीडिया पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिसको वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसको हटाया गया। उसके ऊपर जो रोक लगा दी गई थी उसको हटाया गया। फाइनली 26 अप्रैल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आप सब लोगों को याद रखनी है, 26 अप्रैल 1994 को रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नया झंडा लहराता है। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक है रेफर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेमोक्रेसी का जन्म होता है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके तहत लोगों को रूल्स और वी कैन से राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको एम्पावर किया जाता है। द पार्टी गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और इसके बाद वहां पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर साउथ अफ्रीका के फ्लैग के बारे में थोड़ा डिस्कस करें उस दौरान के बारे में, तो इवन मैं ANC की बात करूंगी, जिसका बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस वर ऑन दैट फ्लैग। वन इज द ब्लैक, second one is the green, and third one is the yellow. Black represents the people or natives of the South Africa. Green refers to the land, and yellow refers to the mineral wealth of the South Africa. जो horizontal lines है वो इस बात को represent करती है कि सबको equal status दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को resources मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहे। Further और discuss करते हैं। Let's move on to the next one. So दैट इज साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को या उसके बनने के बाद इसको एक रेनबो नेशन बोला गया। रेनबो मतलब जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। कलर है रेफर्स टू द स्किन कलर, जहां पर हर एक कलर के पर्सन को इक्वली ट्रीट किया गया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन द वन हैंड इट हैज सोलम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स declare to one another that we shall never permit कि जैसा पहले हुआ, यानी कि जो white people ने हमारे साथ किया, हम प्रॉमिस करते हैं या हम कसम खाते हैं कि ऐसा वापस ना हो। राइट? Brutal and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by ऑल पीपल। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है जो सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट रखे। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, women and men. So what we had discussed, we discussed the story of South Africa, what the policies they were facing or what the discrimination were faced by them. हमने नेल्सन मंडेला के बारे में बात करी कि उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लिया, 7 लोगों को उनके साथ जो स्टेप लेने के लिए जेल में भेज दिया गया। फिर भी ANC का फॉर्मेशन होता है, द पीपल स्ट्रगल फॉर दैट, एंड फाइनली अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। राइट? तो ये स्टोरी से हमें ये पता लगेगा कि हम लोगों को इससे क्या व्यू पॉइंट मिला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट स्लाइड, in this we are going to discuss why do we need a constitution. Constitution को हिंदी में बोलते हैं संविधान, कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, क्यों हमें रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आता है आपका गेम, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, हर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करके उस गेम को खेलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, कोई चीटिंग ना करे या कोई किसी को बेवकूफ ना बने। राइट? सो अगर हमें डाइवर्सिफाइड देशों को एक करके चलना है, जैसे कि अफ्रीका में थे ब्लैक, व्हाइट, कलरेट्स, इंडियंस, ऐसे डाइवर्सिफाइड देशों को अगर आपको एक साथ लेकर चलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अफ्रीका जैसी ही हालत होगी
जो मेजोरिटी या माइनॉरिटी की तो बात नहीं कर सकते, जो मोस्ट पावरफुल ग्रुप होगा वो दूसरे ग्रुप्स पर रूल करेगा, जैसा साउथ अफ्रीका में हुआ। सो बहुत जरूरी है कि रूल्स लिख लो। मैंने अगर बोल दिया कि ऐसा होगा, वो फॉलो हो ना हो, लेकिन अगर कुछ रूल्स को लिख लिया जाए, दैट मीन्स अभी बहुत जरूरी हो गया है कि आप सबको फॉलो करने हैं, राइट? सो these rules lay down how the rulers are to be chosen in future. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, अगर हमारे देश की बात कर लेते हैं, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमें पता है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन का प्रोसीजर है, अब डिपेंड करता है वो किसका इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का है, एमएलए का है, एमपी का है। सबके लिए रूल्स डिफाइंड है, क्या क्राइटेरिया होगा, कौन जीतेगा, किसकी सरकार चलेगी, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कहा जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होता है, राइट? These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. हमारे यहाँ पर जो रूल्स बना रखे हैं उसमें ये भी लिख रखा है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सबके लिमिटेशंस है, सबकी पावर्स डिफाइंड है कि कौन कितना अपनी पावर को यूज कर सकता है, किस लेवल तक कर सकता है, राइट? अगर ऐसा ना किया जाए, so once the people become powerful, they can do anything. It was just like monarchical or dictator rule. Democracy was far different from these rules, right? Finally, ये बताएंगी कि आपके क्या अधिकार है। तो हम लोगों को 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, राइट? इसके अलावा इसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा, these rules will work only if the winner cannot change them very easily. यानी कि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। नो, देयर वाज अ डेफिनेट प्रोसीजर टू डू दैट, एल्स आप विनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो करना चाहो वो कर सको। दे ऑल्सो अग्री दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। दैट मीन्स ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, आपके अकॉर्डिंग रूल्स नहीं चलेंगे। सो उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स, और यही रूल्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी कंट्री हैव डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे देश जितना डाइवर्स तो और कोई देश नहीं है, पर हर कंट्री में डाइवर्सिफिकेशन यानी कि वैरायटी ऑफ पीपल। वैरायटी इन व्हाट सेंस? इन जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, स्किन कलर, स्टेटस, इन सब बेस पर आपको वैरायटी ऑफ लोग यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आपको देखने को मिलेंगे। नाउ द रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन वेरी बैड। जरूरी नहीं है कि आपके जो आसपास वाले लोग हैं उनसे आपके रिलेशन खराब हो, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके ओपिनियन अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग है। डाइवर्सिटी आपके ओपिनियन के सेंस से नहीं, मैं क्या चाहती हूँ किसी चीज को लेकर, आप क्या चाहते हैं किसी चीज को लेकर। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव, भले वो देश डेमोक्रेटिक हो या ना हो, हर गेम के लिए या हर एक कंट्री के लिए रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना रूल्स के गाड़ी आगे नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं क्लैशेस होंगे, ये श्योर है, क्योंकि डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, राइट? आगे और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ डिफिकल्ट टास्क।